Welcome to my channel. Today I am going to start CBSE syllabus again. That additional practice paper mathematics 2023 to 2024 10th class maths. यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट चैप्टर है. दैट चैप्टर नेम इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके CBSE सिलेबस में एंड SSC सिलेबस में भी ऑल्सो प्रोग्रेशन चैप्टर लाइक दिस. तो ये आपको क्वेश्चन ऐसे टाइप के देगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, तो उसको सॉल्व करने के लॉजिक भी दे दूंगा मैं. सो पहले हमको क्वेश्चन देखना है कि इन दिस क्वेश्चन ऑलरेडी आई हैव मेंशन दैट कि इन द क्वेश्चन इज गिवन द फर्स्ट टर्म इज 6 सेंटीमीटर. यानी आपको डायग्राम पे भी अगर कंसिडर किया जाए तो यहाँ से यहाँ तक जो रॉड है, द वन रॉड इज 6 सेंटीमीटर रॉड, उसका अपने को लेंथ दे दिया. एंड द एर्थ टर्म A8 इज नथिंग बट 29 सेंटीमीटर. यानी यू शुड काउंट वन पार्ट ऑफ द ट्रायंगल, यानी चिमनी, जो एक चिमनी है उसमें होल्स किया गया. टोटल 8 होल्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6 7 8. There are 8 holes. In 8 holes they have the part from that each part means gap बोलो या that is called as a 2 centimeter. तो एक 2 already is given in the question. Or one rod, first rod has given the length of that 6 centimeter and the 8th rod already is given 29 centimeter. जो लास्ट वाला डायग्राम है ऑलरेडी गिवन, ये हम नहीं लिखे, ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी. तो ये 29 सेंटीमीटर दे दिया गया. एंड दे आर आस्किंग इन दिस क्वेश्चन द फोर्थ रॉड P. Now look at here. So already we got it, the first term 6 centimeter and eighth term means that total rods, eighth rod length also given 29 centimeter in the question. And what is the asking in the question? Right, count down 1 2 3 4 5 6 7 8 1. यहाँ पर consider वहाँ पे कुछ missing rods हैं. This rod is called 8, second one, third and fourth, this fourth rod, and the missing one, this one also, one more rod is there, that is called seventh rod. So they are asking in the question like this. Sometime the fourth rod and fifth rod and sixth rod means what, the terms, वो terms find out करना है. तो see, पहले हमको क्या करना है, let it be A1 A2 A3 A4 A5 A6 A6, A7, A8. There are 8 rods are there. Let it be, you should take the A1 to A8. And next, already in the question is given, the first term A1 is given and 8th term is given. So what we have to find? Fourth term, fourth rod means P. Let it be this P. We have to find this P. So already what is the given, this 8th term you have to take. What is the formula of nth term? First you have to write arithmetic progression. Arithmetic progression formula, sorry, A plus n minus 1 into D. This is the formula. Arithmetic progression formula. That formula is nothing but A plus n minus 1 into D. What is A? What is n? What is D? A for first term, A for first term, N for nth term, D for common difference. We have to find the common difference of this all the terms. तो let it be, ये वैल्यूज को हमको लेकर सॉल्व करना है. तो ऑलरेडी हमको एक हिंट दे दिया है क्वेश्चन में, दैट इज एर्थ टर्म. तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग हियर एर्थ टर्म. A means already we know that the value of A means A1 is A, यानी फर्स्ट टर्म ऑलवेज ए रहेगा, इसको हम ए ही कंसिडर करेंगे. तो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6. ऑलरेडी इन द क्वेश्चन इज गिवन द फर्स्ट टर्म A1 इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर. तो A1 इज A फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पर आ गया 6 एंड n की जगह पर हम लिखेंगे 8 minus 1 एंड D we don't know exactly, we have just written that. फाइंड आउट करेंगे. A8 के जो वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, A8 is nothing but 29. A8 is nothing but 29. ये भी क्वेश्चन में दे चुका है. तो सब्स्टिट्यूट 29, 6 plus
8 minus 1 how much? 7D. तो हमारे पास 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 प्लस 7D। तो मैं क्या करा, 29 को वैसे ही रखा, प्लस 6 को इधर ले लिया, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 7D वैसे ही रख रहा हूँ मैं। तो मेरे को 29 में से 6 निकाल दिया गया, तो 23 इज लेफ्ट एंड 7D यहाँ बच गया। तो देयरफॉर द D अपने पास 23 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, यानी ये 7 नीचे चले गया, तो D की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो कॉमन डिफरेंस। तो मेरे पास जब D की वैल्यू आ गई, A ऑलरेडी है, A 8 है, 29 एंड नाउ वी आर गेटिंग D वैल्यू। तो देखिए मैं बता दूंगा यहाँ पर अगेन, A1 क्या है 6, D क्या हो गया 23/7। माने मेरे को ये दो वैल्यूज की हेल्प से अब मुझे फाइंड आउट करना है P, यानी फोर्थ टर्म P फाइंड आउट करना है, मीन्स रॉड ऑफ P। तो देखेंगे मैं फोर्थ टर्म किस तरीके से सॉल्व करूंगा। अब मैंने लिखा पहले फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगेन आई एम रिटन द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फॉर्मूला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला। तो नाउ ए एन का मतलब ये है कि जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ A4 फाइंड आउट कर रहा हूँ। Which term? We have to find the fourth term, A4. Why? Because 1, 2, 3, 4. The fourth rod P है, fourth rod P है, यानी A4, ये A4 हो गया। तो सिंपल, A की वैल्यू मेरे पास क्या है 6, N की वैल्यू क्या है मेरे पास 4 माइनस 1 एंड D 23 डिवाइडेड बाई 7। ऑलरेडी यहाँ पर हमको मिल गई है, वही वैल्यूज लेके मैं सब्स्टिट्यूट करा। A की जगह पर 6, A1 is nothing but A। तो A4 की वैल्यू क्या है मेरे पास P, माने A4 मीन्स P रॉड फाइंड आउट करना है ना, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग P। तो P बोलो या A4 बोलो, द सेम कंडीशन। 6 प्लस 4 में से 1 निकालीजिए आप, 3, दैट इज 3 एंड 23 डिवाइडेड बाई 7। ये कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कैंसिल होने की, तो ऐसे टाइम पर हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना होगा। दैट इज P इज इक्वल्स टू 6 प्लस 3 3 जा, ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 7, यानी 3 इंटू 23 69/7। अब यहाँ कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, तो यू शुड टेक 1 जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए, इसको एलसीएम भी बोलेंगे आप। P इज इक्वल्स टू 7 इंटू 6, 7 इंटू 6 हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखेंगे आप 7 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 69 एज इट इज, फिर 1 7 जा 7, तो क्या होगा 7 6 जा, P की वैल्यू आ गई 7 6 जा 42 प्लस 69 डिवाइडेड बाई 7, ये वैल्यू हमको ऐसा आई, यानी 7 6 जा 42 ये हो गया प्लस 69, फिर हमको P इज इक्वल्स टू, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ बता दूं मैं। कहाँ भाई, यहाँ पे देखिए आप 42 प्लस 69, 2 प्लस 9 11 कैरी 1, 4 प्लस 6 10 10 11, तो मुझको क्या आया 111/7। ये वैल्यू आई मेरे पास A4 की 111/7 एंड P वैल्यूज भी बोल सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कितना आसान है, मगर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। होते कहाँ पर कंफ्यूज मालूम है, द फर्स्ट टर्म इज A1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये तो दे देता, फिर 8th टर्म देख लेते। बच्चे सोचते कि भाई यहाँ पर जो चीज़ डायग्राम में दिया है ये मिसिंग वाले भी फाइंड आउट करना। हाँ, अगर समटाइम अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि मिसिंग वाले टर्म्स भी फाइंड आउट करना है तो करना है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। बट आपको मैं बता दूँ, जहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि सीरियल ऑर्डर में पहले तो हमको वो देख लेने का कितने टर्म्स है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट वाला रॉड दिया बोल के इसलिए सीख ले। कुछ बच्चे क्या करते, सर यहाँ 29 है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नो, कभी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खासियत ये है कि सीक्वेंस ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर तक, तो आपको वैसा कंसिडर करना है, तो यहाँ से जाना है आपको, तो इसलिए 6 से ले लिए अपन। एक पॉइंट हो गया डॉट का। दूसरा पॉइंट ये है कि सर ये 29 है, तो मतलब लास्ट वाला टर्म है जो 8th टर्म बोल के मैं लिखा A8 इक्वल्स टू 29। ये लेने के बाद, और इसका शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी निकाल सकते प्रोग्रेशन में, अगर आपको कोई सवाल करे। अच्छा नहीं, वो तो देख लेंगे, पहले आंसर ला लिया हम, इसको करेक्ट आया या नहीं चेक करेंगे। 69/7 नो, मैच नहीं हो रहा हमारा आंसर।
53 by 5, that is also wrong. 76 by 5, that is also wrong. The D is correct option. D is correct option. तो हमारा ये तो आंसर आ चुका है, मगर मैं कुछ और भी बेसिक्स देना चाह रहा हूँ जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं. जैसा कि अगर कोई सवाल कर ले व्हाट इज द 100th टर्म इन द फॉर्म ऑफ nth टर्म में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 100th टर्म अगर हमको लिखना पड़े तो मैं बता दूं, ये तो आप लोग लिख ले सकते 100 यानी A10 की वैल्यू अगर हमको निकालना है तो सिंपल A प्लस 9D लिख लेना. ये जितना भी टर्म होगा उसका एक कम A प्लस डी में, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है मिनिमम. अगर A100 अगर हो गया, A10 का ऐसा है तो A प्लस 99D. अगर सपोज करो A5 हो गया तो A प्लस 4D. यानी जो भी नंबर, जो भी टर्म होता है वो टर्म का शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं. वहाँ पर भी हम जैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ शॉर्टकट मेथड है फॉर द ऑब्जेक्टिव के लिए जो स्पीड कर सकते हैं आप और अंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं. जो प्रॉब्लमेटिकल टाइप क्वेश्चन में भी सॉल्व कर सकते हैं इसको. 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जो भी आपके सेक्शन से, सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, आप प्रैक्टिस करिए. ऐसे फॉर्मूलेस को अच्छे से दिमाग में बिठाइए. ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सब्स्टिट्यूशन और सिंप्लीफिकेशन. ओके, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. और दूसरी चीज़, आप प्रैक्टिस करना भूले मत और फॉर्मूले को याद रखिए. और जितना हो सकता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करिए, लाइक करिए और दूसरों को भी हेल्प हुए जैसा मेरा CBSE सिलेबस के क्वेश्चन है और कोई समझे जैसा. ओके, आई होप. राइट ऑन फास्ट.